अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही? यस सर, जी आ रही है। सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। ओके, सो आपको सामने स्क्रीन शो हो भी रही होगी। और लेट्स सी कि कोई एक इसमें खोल लेते हैं गूगल क्लासरूम में। ओके, इफ यू गो टू गूगल क्लासरूम एंड इफ यू गो टू क्लास वर्क सेक्शन, सो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका कोर्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो दिस बेसिकली कंटेंट योर course outline, which is means like your course content, then the course learning outcomes and evaluation criteria. Okay, so if I open them, ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनामिक्स का जो नया कोर्स है, जो अपडेटेड कोर्स कंटेंट है, वो यहाँ पे मौजूद है। ओके, सो ये सारा कोर्स कोशिश करेंगे कि हम कवर अप करें। बुक्स इसके लिए जो है जॉनस्टन एंड बेयर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय जेल मेरियम और आरसी हेबलर। जो जेल मेरियम और आरसी हिबलर है, ये मोस्टली हम यूज करेंगे। जॉनसन एंड बियर को आप एज अ रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। ओके, चार्ज सीलोज हम कोशिश करेंगे इसमें अचीव करने की। जो एवोल्यूशन क्राइटेरिया होगा, दैट विल बी 20% मिड टर्म, 20% सेशनल एंड 60% फाइनल टर्म। सो दिस इज यूजुअली द जनरल क्राइटेरिया जो कि हम नॉर्मल सेमेस्टर में रखते हैं। फॉर लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया हमने फॉलो किया था फॉर ऑनलाइन एग्जाम, in that case final term was 50% and sessional was 30%, but so far it's not been revised, so we will go with this one. अगर ये change होते हैं तो I will inform you then. Okay, जो recommended books हैं, इसमें अगर आप देख लें, इस पर क्लिक कर लें, तो ये दोनों बुक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनामिक्स बाय जे एल मेरियम और आर सी हिबलर। सो इसकी जो आई थिंक 12th एडिशन जो है यहाँ पे मौजूद है। और ये बुक अगर आप देख लें, लेट्स सी, यहाँ से इसको आप ओपन इन न्यू विंडो कर दे, देन यू कैन डाउनलोड इट। ओके, टाइम टेबल, टाइम टेबल अगर आप लोग देख लें तो दिस इज टाइम टेबल दैट आई विल फॉलो फॉर डायनेमिक क्लास। ठीक है, 5 सेक्शंस है। सो मे बी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम इसमें शायद कुछ शफलिंग वगैरह कर दे, लेकिन फॉर टाइम बिंग इसी को फॉलो करते हैं। ओके, जो लेक्चर आज मैंने लेने, दैट इज बेसिकली गिवन ओवर हियर। इसमें से लेक्चर नंबर 1 आई थिंक लास्ट वीक हो चुका था, so today we will go with lecture number 2. Okay, then if there is some lecture video recording or assignment or quizzes, it will be posted over here. Okay, so now let's go towards the main topic or the main lecture. Okay, so what we did last time, we started with introduction to mechanics, then we went on to different definitions, the application of mechanics, then rigid body mechanics, deformable body mechanics, and fluid mechanics. We went through basic concepts, difference between static and dynamics, then the coordinate system, its application, again few basic concepts, particle, concentrated load. Then we went through like the basic of statics, dynamics, in which we study first law of motion, then second law of motion, and then third law of motion.
ओके, देन हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, then the SI system as well as the foot-pound system and the basic units, prefixes means significance of data, scalars, vectors, types of scalars, vectors, so types of vectors, sorry. Okay, how we can add, how we can subtract, how we can means calculate, how we can find resultant. We went through those things, and then we devised like the different trigonometric ratios or different laws that we can use in mechanics. Okay, so that was basically the previous lecture. So in today's lecture, what we are going to do, we will do few problems. We will cover up few numericals. Okay, so let's see what we have. Sample problem 1. A space shuttle payload module with 100 lb when resting on the surface of Earth at a latitude of 45 degree north. ठीक है, ये कंडीशन गिवन है. वेट कितना है हमारे पास? वेट है 100 lb. अब सबको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो तीन पार्ट है हमारे पास. करना क्या है? In first part, we have to find out the mass of module in both slugs and kilograms and its surface level weight in newtons. So अगर आप थोड़ा सा पीछे देख लें, यहाँ पे ये सारी कन्वर्जन हमारे पास मौजूद है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 slug is equal to 14.5945 kgs. और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 1 न्यूटन में आपके पास कितने पाउंड्स हैं. ठीक है, सो न्यूटन की जगह पाउंड कन्वर्जन लिख दें यहाँ पे, और 1 मीटर में कितने फीट है आपके पास, वो यहाँ पे पुट कर दें. सो व्हेन यू पुट दोज वैल्यूज, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक स्लग और केजी के आपस में कन्वर्जन क्या है. सो यहाँ से आप ये कर सकते हैं. वी डिस्कस इट लास्ट टाइम. सो बाकी भी यहाँ पे सारे मौजूद है. फॉर एग्जांपल 1 पाउंड फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू 4.45 न्यूटन. मीन 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर. रिवर्स कर ले, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट. ओके, तो इट्स वेरी मच सिंपल. आपने क्या करना है, हमारे पास वेट मौजूद है ऑलरेडी. वी हैव डब्ल्यू, एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. ठीक है, सो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मास. एंड मास इनिशियली इट विल बी इन स्लग. सो जी की वैल्यू आपके पास होगी फुट पाउंड सिस्टम में 32.2. ठीक है, फुट पर सेकंड स्क्वायर. और वो पुट करके आपके पास मास आ जाएगा. देन रिमेनिंग अगेन यू हैव टू फाइंड इट आउट इन the mass in kilogram. So mass in kilogram कैसे, आप स्लग को डायरेक्ट किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और या आप इस तरह करें कि एलबी को आप न्यूटन में कन्वर्ट करें, और एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा इन न्यूटन्स, और एम वी नीड टू फाइंड आउट. जी आपके पास 9.81 हो जाएगा. सो यू कैन डू इट बोथ वेज. ये जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, सो यू कैन फाइंड इट आउट दिस वे एंड यू कैन फाइंड इट आउट दिस वे. ठीक है, तो ये आपके पास ये दोनों तरीकों से जो पार्ट फर्स्ट है ये आपके पास हो सकता है. So determine the mass of module in both slugs and kilograms and its surface level weight in newtons. तो ये आप कर सकते हैं. ओके, न्यूटन में कैसे कर सकते हैं, मीन इसको आप डायरेक्ट न्यूटन में कन्वर्ट कर लें तब भी आपके पास हो जाएगा. या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मास इन केजीज आ गया, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी आप कर सकते हैं. नाउ suppose that the module is taken to an altitude of 200 miles above from the surface of Earth and released there with no velocity relative to the center of Earth. Determine its weight under these conditions in both pounds and newtons. कहने का मतलब ये है कि for example the object was initially on Earth's surface. So means the value of G on Earth's surface is usually 9.81 meter per second square, or we can say it is 32.2 feet per second square. So now if this object is taken away from this surface, so definitely the value of G will be reduced. Now how much it will reduce, we will see it. So general perception is basically that if we go out from
means if we go away from our surface and at a certain distance, or directly as we go from this periphery of Earth, the value of G becomes zero, or the body becomes weightless. So this is basically a myth. What happens when you go away from the Earth's surface? The value of G basically reduces, and how much it reduces, we will look it uh, through some equation. So means the body is away from Earth's surface. How much away? 200 miles. So usually, if we are having an equation, if you put that value of distance from Earth's surface in that, so we can get to know the value of G at that specific distance. Okay, this is the equation. G is equal to G naught. G naught means 9.81 value, or we can say it's the value, is the G value on surface of Earth. Okay, this is radius of Earth, this is radius of Earth, and this is the distance from Earth surface. So अगर अर्थ सरफेस से ये डिस्टेंस हमारे पास, if this distance from earth surface, if it is 0, this will become 0, this one will become r square. So r square and r square, it will cancel out, and what we will get, we will get G is equal to G naught. So means on earth surface the value of G will remain 9.81. But if this value is 1 mile, if this value is 1 meter or 1 feet, you can put that value over here, and you put that value over here, this denominator will increase, or the value over here will increase, and this G value will go down. Okay, so now in this case, what we are going to do, we have put that value, and then this R value, and R plus H. So H is basically 200 miles. That's why we put it over here. Okay. So when you find out the G value, that becomes 29.2 feet per second square. So means if we go away like 200 miles from Earth surface, the gravitational value, the gravitational acceleration value, it will reduce from 32.2 to 29.2. So what we need to do, we need to basically find out. Okay, give me a minute. Okay, so what was the question? Means suppose the module is taken to altitude of 200 miles above the Earth's surface and then released there with no relative velocity to the center of Earth. In that case, now find out its weight under these conditions in both pounds and newtons. So now what we need to do, we need to find out the values in pounds. So pounds के केस में हम कैसे find out कर सकते हैं? We are having this G value, okay, and now we also have the mass. So the mass will remain same, which we basically found out in our last part, which was 3.11 slug. Okay, so m into gh, when you put this value in the equation, you get this 90.8 lb answer. Now if you want to convert this one directly into newton, so you can do it. So one pound four is basically equal to like 4.5 newton. Okay, now let's see the other part.
Finally, suppose the module is fixed inside the cargo of space shuttle. The shuttle is in circular orbit at an altitude of 200 miles above the surface of Earth. Determine the weight of module in both pounds and newtons under these conditions. Okay, so if you initially the object was alone here at position B. Now they what they are saying that imagine that this object is in some cargo, a space shuttle, but the altitude from our surface is still 200 miles. So it doesn't matter that under which casing or what is the type of casing around this object. If it is at this 200 miles, so the value of g will remain same, the value of weight will remain same, or the force of attraction that it basically experiences, it will remain same. So it doesn't matter whether it is outside this space shuttle or it is inside the space shuttle, so the weight will remain same. If you repeat this question, what they are asking, suppose the module is fixed inside the cargo bay of space shuttle. The shuttle is in circular orbit at an altitude of 200 miles above the Earth's surface. Determine the weight of module in both pounds and newton under this condition. Okay, so if you check the third part, the weight of an object does not depend on the motion of object. Thus, the answer of part C will remain same as that in part B. Okay, if you have any question, you can ask. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, if you don't ask question, I will assume कि आपको समझ आ गई है. Okay, now let's move towards exercise problem. So for exercise problem, what you need to do, basically you need to concern table T/2 in appendix T, and this appendix is basically given in your dynamic book. It was also given in your static book, and it is given in dynamic book. Okay, what you can find out from this table, you can find out like the mass of Earth, the mass of Sun, the mass of Moon, the radius of Earth, the different distances like the distance between Sun and Earth. So all those standard values are basically given in that table. Okay, so for 3600 lb car, what you need to do, you need to find out its mass in slug. So you are having force and you are having this equation. It means you are having weight, which is 3600 lb, and what you need to do, you need to find out its mass. So W is equal to mg. You need to find out m. What is g? It is 32.2. You already have W, so put values in equation and you can find out simply m. Now what you need to do, you need to find out the same mass in kilograms. So you can do direct conversion, or you can first convert this 3600 lb into Newton, and for G you can use 9.81 value. So it's very much simple, you can do it. The solution is given over here. Okay, let's check out the second question. So determine your mass in slugs, convert your weight into newtons, and calculate the corresponding mass in kilograms. Okay, so you already know your weight in mass, your mass in kgs. So you can have answer for the last part. You can convert it into slugs by multiplying it with 14.5. Sorry, it may be the reverse, like 1 slug is equal to 14.5 kg. So you can do the conversion from there, and you can find out your weight in newtons. So you already know what's your mass and how you can convert it. So by using this equation, you can do it. Okay, now if you look at problem 3, for the vector given vector v1 and v2, what you need to do, you need to find out v1 plus v2, v1 plus v2, v1 minus v2, v1 into v2, v1 cross v2, v2 cross v1, and then v1 dot v2. Okay, how these things are different? Okay, आवाज आ रही है clear सबको? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, जी सर ठीक आ है. रही है. Okay, so if you look at this vector is having a magnitude of 15 and the angle is also given over here. Over here we are having some magnitude and the angle is also given over here. Okay, so we are having two vectors v1 and v2. These capital, that basically represent vectors, and if it is not capital, if it is just simple like alphabets or simple letters, so in that case it will not represent vectors. So now in this case v1 plus v2, they are basically scalars, not vectors. So v1 is 15 and v2 is 12. So means we can add both of them just like simple scalar. And v1 plus v2, it will become 15 plus 12, 27. Now if you look at this one, we are having bold letters v1 plus v2. Now in this case we cannot do the simple addition like scalars. So how you can do? You can add these two by using vector addition. So you can do it by using head to tail rule, you can use it by using parallelogram law, or you can add it by using the resolution of vector addition through the resolution of vector. Okay, so how we can find this out? We are having this vector, it will be having two components, v1x and v1y. So v1x will be cos of angle that we have over here, 3/4 से जो भी आपके पास आ जाएगा, and this one will be sine of this angle. So 15 cos of this angle will be x component, 15 sine of angle will be this component. So 15 will be common and this will be sine of angle and cos of angle. So this is basically your vector. Okay, so you can find it out by using this one. Now you can also find out component of this vector, v2 cos of 60 and v2 sine of 60. So this will be your second vector, and now you can add it, v1 plus v2. How you can find out this v1 plus v2? This one, v1 plus v2, add x component of both vectors and add y component of both vectors. And they have done it over here. They have added the x components and they have added the y component. Why this 6 is minus? It is minus because the direction of x for this vector is negative. Okay, now the second one is v1 minus v2. So now you can subtract the x component as well as you can subtract the y component. So you can do it this way, v1 minus v2, and you will get this answer. Now in this case, this is v1 cross v2. v1 cross v2 means you have to take the cross product, and you know that already how we can take the cross product. In cross product, I cross j will become k, j cross k will become I, k cross I will become j. So in this way you can go on, and if there is anything in the reverse order, for example j cross I, so it will become minus k. So by using that rule, you are having these two vectors, this vector as well as this vector, you can multiply it and you can get some answer. Okay, same will be the situation for v2 cross v1, and then you can do the scalar multiplication, v1 dot v2. So v1 dot v2, in this case you will be having dot product, and in dot product, if we are having I dot I, it will be 1. If you are having j dot j, it will be 1. If you are having k dot k, it will be 1. Remaining I dot j, j dot k, k dot I, it will be 0. So you can look at this one, 12i plus 9j, and you multiply both of them, you will get this answer. So the final product of scalar product or dot product, it is basically scalar. That's why we are having magnitude over here on. Hopefully आपको समझ आ गई होगी. If you are having any question, you can ask. सर ये v1 अंडरस्कोर और v2 अंडरस्कोर का समझा दें कैसे आया. अच्छा कैसे आया? वी आर हैविंग दिस फैक्टर, ये हमारे पास फैक्टर है. ये पहले दो स्टेप्स बता दें. जी हाँ वही बता रहा हूँ. ये हमारे पास v2 है, वेक्टर है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है इसका सिर्फ 12, वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन. अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको जरा आप वेक्टर फॉर्म में लिख दें, ठीक है,
तो वेक्टर फॉर्म में मतलब इसका ये है कि इसका कोई आई कंपोनेंट होगा, जे कंपोनेंट होगा और के कंपोनेंट भी होगा। तो आई कंपोनेंट इसका कैसे फाइंड आउट होगा? जो एक्स कंपोनेंट है इसके लिए आपको एक्स कंपोनेंट निकालना होगा जो कि 12 cos of 60 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 12 cos of 60 हो जाएगा, वो आप निकाल लेंगे। अच्छा, V2 का फिर cos of 60 आपके पास किस, आई थिंक इस 0.5 के बराबर होता है, सो आपके पास ये 6 आ जाएगा ये कंपोनेंट। फिर इसका जो y कंपोनेंट आपने निकालना है दैट विल बी 12 साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो 12 cos of 60 i प्लस 12 साइन ऑफ 60 j, और जो x के साथ है 12 cos of 60 के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली ये एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4, यहाँ से एंगल निकाल लेंगे। इसके साथ x कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा 15 cos ऑफ दिस एंगल एंड 15 साइन ऑफ दिस एंगल, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर्स आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। लाइक ये एक वेक्टर आ गया, ये दूसरा वेक्टर आ गया। 2D सिस्टम में एक्स वाई में है, जेड में कोई कंपोनेंट नहीं है तो जेड 0 होगा। जी क्लियर हो गया? सर ओके, यस सर। ओके ओके, 1/4 आप खुद कर लें। ठीक है, और इसमें आखिर में पूछा गया कि द वेट ऑफ डजन एप्पल इज 5 lb। आपके पास एक दर्जन सेब है, ठीक है, उनका वेट गिवन है। फाइनली आपसे ये पूछा गया कि आपके ख्याल में जो एक एप्पल होगा उसका वेट 1 न्यूटन के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी मच सिंपल। अगर 12 सेब आपके पास 5 lb के बराबर है, उसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दे, कितने आते हैं? ठीक है, जितने भी सेब आपके पास होंगे उनको फिर आप नंबर ऑफ एप्पल पे डिवाइड कर दें उनके वेट को, तो आपके पास कोई आंसर आ जाएगा। अगर वो 1 न्यूटन के बराबर आता है सो दिस मीन्स एवरेज एप्पल का वेट वाकई 1 न्यूटन होगा, और अगर 1 न्यूटन से ज्यादा आता है सो आप उसके मुताबिक फिर बता देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है 1.853 राउंड अबाउट आया है। सो दिस मीन्स आपके पास अप्रोक्सीमेट वेट जो है वो 1 न्यूटन नहीं, अराउंड 2 न्यूटन आपके पास अप्रोक्सीमेट वेट आ रहा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें एंड देन सॉल्व कर लें, इट्स वेरी मच इजी। कंसिडर 2 iron spheres each of diameter 100 mm। आपके पास क्या है? 2 iron spheres है। गिव मी अ मिनट। ओके, consider 2 iron sphere each of diameter 100 mm which are just touching at what distance are from the center of earth. Will the force of mutual attraction between the contacting sphere be equal to the force exerted by the earth on one of the sphere? Okay, I think for that I need to share full screen. Okay, so what is the question? Consider 2 iron spheres each of diameter 100 mm which are just touching. So we are having 2 spheres. We are having one sphere and then we have another sphere. Okay, these 2 spheres are basically touching and इनका जो diameter है वो कितना है? वो है 100 mm. Which okay, at what distance are from the center of earth will the force of mutual attraction between the two contacting sphere will be equal to the force exerted by the earth on one of the sphere? Okay, for example
if this is Earth and let's say this is the distance from Earth surface. If this is distance from Earth surface, so what they basically want, they want you to find out this R. Okay, what is the question? They are saying we are having two sphere, this size is 100 mm, इसका भी जो size है वो हमारे पास 100 mm, ठीक है। इनके दरमियान म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट कर सकते हैं Newton law जी? universally gravitation. जी हाँ, सो इसका जो मास है और इसका जो मास है वो फाइंड आउट करेंगे। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा? इसका डायमीटर अगर 100 mm है, ठीक है, सो ये 100 mm, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 100 mm ही हो जाएगा इन दोनों के सेंटर के दरमियान। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, ईच डायमीटर 100 mm, ठीक है, डायमीटर आपके पास 100 mm है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक वो भी 100 mm हो जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अर्थ जो है, दिस इज अर्थ, अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे भी कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड अर्थ इज आल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। सो एट व्हाट डिस्टेंस आर the force of attraction between Earth and any of this sphere, it will become same as the force of attraction between these two objects. तो हम ये force of attraction between Earth और ये object find out कर सकते हैं। Can we find out the force of attraction between Earth and any of the sphere? Again by using gravitational law. So in this case we will be having this mass m and mass of Earth divided by r square. Is it clear? Yes, sir. Okay, so what we need to do, we basically need to find out this r. We need to find out this r. At what distance from Earth surface? Okay, so this is like r, and इसको हम काट के इसकी जगह इस डिस्टेंस को r प्लस h लिख सकते हैं, r प्लस h. So in other words we need to find out this h. क्वेश्चन की समझ आ गई है? Yes, sir. Okay, so first we will find out the force of attraction between these two objects, and then the force of attraction between these two, the earth as well, the earth and any of the sphere. इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे कि किस डिस्टेंस पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो डिस्टेंस वहां से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। ओके, सो 100 mm स्फीयर्स है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम के लिए आपको पता है हमारे पास इक्वेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और आयरन स्फीयर्स है आपके पास, दो आयरन स्फीयर्स है आपके पास, उनका 100 mm डायमीटर है, ठीक है। तो आयरन की डेंसिटी आप ऑलरेडी टेबल से देख सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू आप देख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं, या टेबल D2 से आप देख लें, ठीक है। और 100 mm है, सो 4/3 पाई r क्यूब से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम अगर आपके पास आ गया है और स्फीयर की डेंसिटी आपके पास है, तो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट मास, ठीक है। और दोनों आपके पास आयरन स्फीयर है, दोनों 100 mm के हैं, तो दोनों का मास आपके पास सेम होगा, m1 विल बी इक्वल टू m2। सो देखिए यहां से आप ये मास फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या होगा? gm² डिवाइड बाय d², ठीक है। सो वेट ऑफ ईच स्फीयर आपके पास कितना होगा? बेसिकली वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वेट ऑफ ईच स्फीयर का मतलब यह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अर्थ एक्सर्ट ऑन द स्फीयर। तो हमारा जो वेट है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है। सो इसका अनदर वर्ड, इसका मतलब यह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द स्फीयर, so this will be mass of earth and mass of the sphere divided by the distance between them.
जो कि यहाँ पे मैंने r प्लस एच कैपिटल लिखा था, इसकी जगह इन्होंने r लिख दिया। ओके, सो जी एम स्क्र डिवाइड बाई डी स्क्र इज इक्वल टू, इसके इक्वल कर दें, इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्र। ये जो m है और ये m आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक और एक एज इट इज रहेगा। एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, जी जी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आपके पास है, ठीक है, which is the diameter or the distance between the two sphere, that is equal to the diameter of sphere, और r हमने find out करना। So from this equation we can find out this r value. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's come towards problem 1/6. The 300 mm diameter spheres constructed of different metals are located at the vertices of an equilateral triangle in deep space. आपके पास we are having three different metals balls, that is copper, aluminum and cast iron, placed at different vertices. Okay, what you need to do, you need to find out the resultant R of gravitational force which the aluminum and cast iron sphere exert on the copper. What we need to do, we need to find out the force of attraction which aluminum and cast iron exert on copper. Is it clear? So for example, first we will find out the force which aluminum exert on copper, then we will find out the force which cast iron exert on copper, and once we do that, then we will be having two forces. So then we will find out the resultant of these two forces. Is it clear? Yes, sir. Okay, so how much force aluminum exert on copper, that will be basically the force of attraction which aluminum can exert on copper. So that can be find out by using law of gravitation. So mass of this one means m1 multiplied by mass of aluminum multiplied by mass of copper divided by the distance between, square of distance between them, which is 1 meter square, and the value of capital G, it will remain constant. So from here we can find out this force of attraction. Okay, and the force is applied by B on A, so the direction will be from A towards B. Is it clear? Yes, sir. Same for this one, for cast iron. The force of attraction will be capital G, mass of cast iron into mass of copper divided by 1 square. Okay, now the force will be again from cast iron on copper, means cast iron will attract this copper, force of attraction. So the force will be like this. Okay, how we can find out this force? Let's say this force is FB, this force is FC. So you can find it out by using this equation: GMAMB, MAMB, MAMC. GMAMB divided by distance dA square B. dA square B is basically 1 square. Okay, how you can find out mass of A? Mass of A means mass of copper. How you can find it out? You can do it by using the volume and density of copper. So volume आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं 4/3 by r cube, और डेंसिटी आप स्टैंडर्ड जो डेंसिटी है इसकी एल्यूमिनियम की वो यूज कर सकते हैं। तो एफ बी आप फाइंड आउट कर लेंगे, एफ बी आपके पास आ गया। सिमिलरली एफ सी आप फाइंड आउट कर लेंगे, एफ सी भी आपके पास आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो अगर आप ये देख लें, दिस वन it is like a right angle triangle. In this right angle triangle, the hypotenuse is having how much value? Hypotenuse की वैल्यू क्या है? 1 meter. 1, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 meter. 0.5. क्यों 0.5 होगी? बिकॉज दिस इज आल्सो 1 मीटर एंड दिस इज आल्सो आइडेंटिकल, तो ये भी 0.5 हो जाएगी। तो जो एंगल यहाँ पे होगा वो वही एंगल यहाँ पे भी आ जाएगा। सो दिस एंगल एज वेल एज दिस एंगल। सो फोर्स हमारे पास अभी है, फोर्स कितना है हमारे पास? 4.38 × 10⁻⁻10 न्यूटन, और इसी तरह एफ सी भी हमारे पास है। तो अगर एफ सी हमारे पास, एफ बी हमारे पास है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स नेगेटिव होगा, एफ वाई ये होगा,
ठीक है, एफ बी कॉज ऑफ 30, एफ बी सॉरी एफ बी साइन ऑफ 30, एफ बी कॉज ऑफ 30, राइट। एफ बी हम कॉमन ले सकते हैं, सो इसके जो कंपोनेंट हो गया माइनस कॉज ऑफ माइनस साइन ऑफ 30 प्लस कॉज ऑफ 30 मीन साइन ऑफ 30 आई एंड कॉज ऑफ 30 जे हो जाएगा, एफ बी के जो कंपोनेंट्स होंगे। सही है, ये इसके Yes. कंपोनेंट्स है। सिमिलरली एफ सी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, साइन ऑफ 30 आई कॉज ऑफ 30 जे, साइन ऑफ 30 आई कॉज ऑफ 30 जे, और ये एफ सी आपके पास है। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स को ऐड कर दे, वाई के साथ ऐड को ऐड कर दे, एंड यू विल गेट दिस फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? Yes, जी सर sir. ये डायरेक्शन वाला नहीं समझ आया, ओके जो आपने डायरेक्शन बताई सर, ओके, ये जरा ग्रेविटेशनल लॉ यह कहता है कि every mass in the universe attract other mass with a force that is directly proportional to the product of their masses। ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिटरमिन द रिजल्टेंट आर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द अल्युमिनियम एंड कास्ट आयरन स्फीयर एक्सर्ट ऑन द कॉपर। सही है, सही। तो अल्युमिनियम क्या करेगा, अल्युमिनियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉपर के ऊपर लगाएगा ना, यस और ये कास्ट आयरन क्या करेगा, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। यस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। यस सही ठीक है, तो डायरेक्शन इस वजह से ऐसी। सही है, थैंक यू सर। ओके, सो स्टेटमेंट से हमने अंदाजा लगा। अच्छा फिर ये देखिए, a space shuttle is in circular orbit at an altitude of 150 mile. Calculate the absolute value of g at this altitude and determine the corresponding weight of shuttle passenger who weigh 200 pound. ये देखिए क्वेश्चन को जरा दोबारा पढ़ लें। एक स्पेस शटल है इन सर्कुलर ऑर्बिट एट एल्टीट्यूड ऑफ 150 माइल, जमीन से कितना दूर है, सरफेस से 150 माइल। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी एट दिस एल्टीट्यूड and determine the corresponding weight of shuttle passenger who weigh 200 lb when standing on the surface of earth at latitude of 45 degree। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, कुछ समझ आई है इसकी? Yes. we are having a space shuttle in a circular orbit at an altitude of 150 miles. Space shuttle is away from Earth's surface. How much away? 150 miles. Okay, so at 150 miles, what you need to do, you need to calculate value of g. Can you calculate it? Yes, sir. Yes, Okay, sir. simply by using this equation, put h is equal to 150. Is it clear? यस Put सर। h. Yes, sir. Okay, so you will get this value. Okay, now determine the corresponding weight of shuttle passenger who weigh 200 lb when standing on surface of Earth. Means when the person was on Earth surface, his weight was how much? 200 lb. Right? So on Earth surface, can we find out his mass? Earth surface पे हम उसका mass निकाल सकते हैं? Yes, sir. अच्छा कैसे निकालेंगे? W is equal to mg, m is equal to w by g. g की वैल्यू क्या होगी अर्थ सरफेस पे? 9.8 हुई फीट में। अच्छा 32.2 फीट या 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? यस Yes, sir. ओके, सो ये हमने वो यूज करके उसका मास निकाल लिया। ये मास आ गया 622 स्लग्स आ गया। नाउ ये जो मास होगा ये अर्थ के सरफेस पे तो सेम रहेगा, लेकिन 150 माइल्स पे ये मास चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? चेंज No, हो sir. जाएगा सर। जी सर मास चेंज नहीं होगा, वेट मास चेंज सेम होगा। रहेगा अच्छा सर। ठीक है, ठीक है। मास अच्छा मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। अभी हमने फाइंड आउट करने की वेट कितना चेंज होगा, मास तो चेंज नहीं होगा ना। यस सर। ओके, सो W इज इक्वल टू mg। सो इतने एल्टीट्यूड पे g की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वेट भी कम होगा। g की वैल्यू कितनी कम हुई है? 29.9 हो गई ना। यस सर।
ओके, सो हम इस मास को 29.9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वो वेट आ जाएगा उस डिस्टेंस पे भी। समझ आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ पे क्या गया, सो वेट कितना 186 हो गया। जमीन के सरफेस सतह पे कितना था, 200 एलबी था, 200 था ना। यस सर। अभी कितना हो गया? 186 पाउंड। अच्छा, यहाँ पे अभी कहा गया है कि आर द टर्म जीरो जी इन वेटलेस which are sometimes used to describe condition about orbiting spacecraft correct in the absolute sense। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या ये बात सही है कि आप अर्थ के सरफेस से जैसे ही दूर जाते हैं वेट जीरो हो जाता है और वैल्यू ऑफ जी आपके पास जीरो हो जाती है, नो वेटलेसनेस का सर। फिनोमेना आकर। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अब हम गए 150 माइल तक चले गए और हमारे पास जो वेट आया वो 186 पाउंड आ गया। ठीक है, सो द टर्म जीरो जी एंड वेटलेस आर डेफिनेटली मिसनोमर इन दिस इंस्टेंस। इस केस में हमारे पास ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। ओके, एट वेट एल्टीट्यूड एच अबव द अर्थ नॉर्थ पोल इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिड्यूस टू 10% of its earth surface value. Assume spherical earth of radius r and express h in terms of r. Okay, what is the question? They are basically saying how much you should go away from Earth's surface so that your weight is reduced by so 10%. that by 90%, so that your weight is reduced to 10%, to 10%, not by 10%. Okay, आप जमीन के सरफेस से कितना दूर जाए कि आपका जो वेट है वो 10% रह जाए। इज इट क्लियर? यस सर। सो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट यहाँ पे है W इज इक्वल टू 100 kg और आपका वेट कितना आना चाहिए, आपका वेट आना चाहिए 10 kg आना 10 चाहिए। kg। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी की वैल्यू कम होनी चाहिए ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एम जी है। ठीक है, यस सर। W इज इक्वल टू एम जी है, आपके पास ये वेट है और अर्थ के सरफेस पे जो आपका वेट होगा वो उसके लिए जो जी की वैल्यू यूज होगी जी नॉट हो जाएगी, W इज इक्वल टू एम जी नॉट। तो हम चाहते हैं कि वेट कितना हो जाए, 10% रह जाए, सो 0.1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर वेट का परसेंटेज हमने मीन्स 10% तक रिड्यूस करना है, वेट हमारा इतना रह जाए, इसके लिए आपके पास मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो जी की वैल्यू कम होगी ना सिर्फ। समझ आ यस रही है? सर। सो ये जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? ठीक है, कित मीन्स ये जी की वैल्यू क्या होगी और ये कितने डिस्टेंस पे आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो ये देखिए, एम जी वेट इज इक्वल टू वेट, कितना वेट हमने रिड्यूस करना है, 0.1 तक लेके आना है इसको, मीन लाइक 10% तक लेके आना है। ठीक है, सो एम तो आपके पास सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, सो ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा और जी आपको पता है कि इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी नॉट। ये इक्वेशन है ना। यस सर। ओके, सो ये जी नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है और यहां से हमारे पास एक ही चीज अननोन है विच इज एच। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2.16 आर। मीन्स अगर आप अर्थ के सरफेस से कितना 2.16 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दूर जाएंगे तो आपका जो वेट है वो 10% रह जाएगा। मीन्स अर्थ का जो रेडियस है उससे मोर देन डबल टाइम्स आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, अर्थ के सरफेस से दूर जाना पड़ेगा, तो आपका वेट कितना 10% तक आपके पास आ जाएगा, मीन 90% आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ।
ये लास्ट टाइम भी क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग अर्थ। इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग अर्थ मीन्स हम ये इमेजिन करते हैं अंडर स्टैटिक कंडीशन के आपके पास अर्थ भी रोटेट नहीं कर रहा और ऑब्जेक्ट भी रोटेट नहीं कर रहा, इन दैट केस हम क्या करते हैं, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही है ना। लेकिन जब आप इमेजिन करते हैं कि नहीं अर्थ अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, और सन के इर्द गिर्द भी ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो आप ये इफेक्ट जब उसमें लेते हैं, सो आपके पास क्या हो जाता है, जी की वैल्यू स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है। इज इट क्लियर? लास्ट टाइम ये चीज हमने डिस्कस की थी, इफ यू रिमेम्बर। ओके, सो यहां पे आप देख लें, ये इक्वेशन देख लें। ये इक्वेशन हमारे पास है, g इज इक्वल टू 9.780327 प्लस 0.005279 साइन स्क्वायर गैमा, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारे पास। अगर आप क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन में अभी कहा गया आपसे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू रोटेटिंग अर्थ सरफेस and the absolute value if the earth were not rotating for sea level position at north or south latitude of 45 degree। समझ आ रही है क्वेश्चन की? आप क्या करें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू रोटेटिंग अर्थ, मींस आप ग्रेविटेशन वैल्यू निकालें, आप जब ये इमेजिन करें कि अर्थ रोटेट कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो रिलेटिव टू रोटेटिंग अर्थ आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लेटीट्यूड की वैल्यू गिवन है 45, लेटीट्यूड गैमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है उस इक्वेशन में आप सिंपली गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये जी रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस सर। ये इक्वेशन, अच्छा, ये बेसिकली मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन, लेकिन जैसा आपको बताओ कि ये बेसिकली आया कहाँ से, ये फिनोमिना क्या। नाउ ये देखिए, द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज डिटरमिन्ड फॉर नॉन रोटेटिंग अर्थ में बी कंप्यूटेड फ्रॉम रिलेटिव वैल्यूज टू अ क्लोज approximation by adding 3.382 into 10 power minus 2 cos square gamma। अगर आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, सो जो जी रिलेटिव आपने निकालना है इसके साथ अगर आप ये टर्म ऐड कर दें तो आपके पास जी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा, अभी आप जी एब्सोल्यूट निकालें, सो जी रिलेटिव जो आपके पास यहाँ पे आया उसके साथ इफ यू ऐड 0.0338 cos square gamma, gamma is again 45 degree, you put this value, you add both of them and you can get this answer, g absolute। so what answer we get, जब हमारे पास relative velocity थी, so g relative velocity when we consider that earth is rotating, so the value was 9.806, and when we consider that the earth is not rotating, so the answer that we got, it is 9.823। so by considering earth rotation क्या होगा आपके पास g की वैल्यू के साथ, It increases, sir. g की वैल्यू आपके पास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगा। सर इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है या फिर ये कैलकुलेटेड से हमने अंदाजा लगाया कि ये डिक्रीज हो जाएगी स्लाइटली? ओके, रीजन बेसिकली इसके लिए ये है कि एक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल you are having some field, some where you are having magnetic field, where you are having some force of attraction, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस किस्म का भी आपके पास फोर्स फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट आपके पास इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, सो इन दैट केस आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट विल बी डिफरेंट, बट इफ यू मूव दैट ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो जो आपके पास वहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी करेगा बाय द मीन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आपके पास जो मोशन है वो कितना है, वो ज्यादा है या कम है। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, in statics you have studied that topic of friction, ठीक है।
इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मीन व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको रिएक्शन ज्यादा मिल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बट द मोमेंट व्हेन यू ओवरकम दैट फ्रिक्शन, जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, तो उसके ऑप्शन को या उसके मोशन को जो रेजिस्टेंस मिलती है वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली रिड्यूस होने लगता है। सो कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रेस्ट में है, सो इट विल experience different force, but when object is moving at a certain velocity, so the force that it experience, it can be changed, and usually क्या होता है कि वो आपके पास slightly reduce हो जाता है। Yes, sir. ओके, सो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपके पास जी की वैल्यू चेंज होती है, और यहां से ये अंदाज हो गया कि जी की वैल्यू कम हो रही है। तो नाउ बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस स्क्रीन में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं क्लास खत्म करें, तो थोड़ा सा वेट कर लें, भी खत्म हो जाएगी। डिटरमिन द एब्सोल्यूट वेट एंड द वेट रिलेटिव टू रोटेटिंग अर्थ ऑफ 90 kg man if he is standing on the surface of earth at latitude of 40 degree. So what we need to do, we need to find out weight of 90 kg man. So the mass will remain same whether we take relative value of g or whether we take absolute. So if we take relative value, so we are having this latitude value, we can find out g relative by using this equation. So by using this one, we will get g relative, and by adding this 0.3382 cos square gamma, if we add this with relative, so we will get g absolute. So we will find g relative and g absolute, and we will multiply this value 90 kg, as the equation is mg, w is equal to mg. So we will multiply 90 with absolute g and 90 with relative g, and we will get both the answers. So the answer that is required, that is basically absolute weight and the weight relative to rotating earth. So ये आप क्या करेंगे, what we need to do, हम पहले g relative find out कर लेंगे, फिर g absolute निकाल लेंगे, फिर w absolute यहाँ से आ जाएगा m into g absolute, and w relative जो आपके पास है m into g relative. So in case of relative, आपके पास जो weight होगा वो slightly कम होगा, because the जो gravitation acceleration or the force of attraction will be slightly reduced. Is it clear? सर Yes, sir. जी जी फरहान, क्वेश्चन है सर कोई? जी जी सर ये एब्सोल्यूट जी रिलेटिव जी से निकालना लाजमी है या डायरेक्ट भी 9.81 लिख सकते हैं? नहीं, इफ यू गो थ्रू द टॉपिक, लास्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ा रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पे जो जी मैंने आपसे कहा था कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी टेक जी एज 9.81। फिर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि अगर इसमें हमने लास्ट टाइम अर्थ की रोटेशन को कंसिडर नहीं किया था, जिसमें जितनी भी कैलकुलेशन हमने की थी वो सारी की सारी गलत थी, तो आखिर में मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि जो वैल्यू है 9.81, वी हैव बेसिकली कंसिडर द मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो रोटेशन है वो उसमें हमने कंसिडर की होती है। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, सो जो 9.81 है, यहां से आप देख लें 9.806 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.81, ये आपके पास रिलेटिव जी की वैल्यू है, मींस व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग। अगर एब्सोल्यूट आप निकालना चाहते हो तो एब्सोल्यूट इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, सही है? सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस कैलकुलेशन के लिए आप 9.81 एक्चुअली यूज कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी। ओके, यस सर, समझ गया सर, थैंक यू। ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे एक माउंटेन क्लाइंबर हैज 80 kg weight, 80 kg mass, determines his loss of absolute weight in going from foot। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ रहा है, ठीक है, उसके एल्टीट्यूड बता दिया गया कि अगर ये इतने एल्टीट्यूड पे जाता है, ठीक है, तो इसका वेट क्या होगा, यहाँ से फिर इतने से अगर 8848 पे जाता है तो वेट लॉस इसका कितना होगा। मीन्स एक बंदा है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, और पहाड़ पे चढ़ने के साथ जब बिल्कुल पीक टॉप पे जाता है, सो वो वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो अर्थ सरफेस से है, सो जितना ये ऊपर जाता है वो डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है आपके पास जी की वैल्यू रिड्यूस होती है। वो सारा का सारा यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों केस में दोनों डिस्टेंसेस पे
जी की वैल्यू निकालनी, दोनों केसेस पे वेट निकालना है, और जितना वेट आपके पास कम हो जाता है वो देन आपने यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एच आपके पास बेसिकली चेंज होगा इस इक्वेशन में, सिर्फ कर लेंगे ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, calculate the distance from the center of sun at which particle experience equal attraction from earth and sun. Let me repeat, calculate the distance from the center of sun. Center of sun से आप क्या करें, वो distance निकालें at which particle experience equal attraction from earth and sun. वो कौन सा, अभी आपने क्या करना है, what you need to do basically, you need to find out the force of attraction first between earth and sun, then the force of attraction between earth and what? Particle. Okay, calculate the distance from the center of sun at which the particle experience equal attraction from earth and sun. ठीक है, the particle is restricted to line which join the center of earth and the sun, justified the two solution physically. अच्छा, मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इक्वेशन से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप निकालें बिटवीन पार्टिकल एंड अर्थ, ठीक है, और बिटवीन पार्टिकल एंड सन, आप ये ये दोनों निकाल लें एंड देन यू कैन इक्वेट देम। तो यहाँ से आप देख लें न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक आप जब ये निकालेंगे, F इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड सन, सो मास ऑफ सन, मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय d स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान। अच्छा, फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल and mass of particle and earth, so mass of particle, mass of earth divided by distance, square of distance between them. so ये distance कैसे आएगा आपके पास, ये total distance कितना है mass of sun and mass of earth के दरमियान, वो तो standard distance है जो कि टेबल से आप देख सकते हैं। is it clear? distance between center of sun and center of earth, ये आपके पास standard distance है, आप टेबल से देख लेंगे, और अगर उससे आप ये d माइनस कर देंगे तो आपके पास उस पार्टिकल और सन के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली, वी एक्चुअली नीड टू फाइंड आउट दिस d। हमने बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये g m ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ आ रही है, ये डिस्टेंसेस आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे आपने क्या करना है, बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट दिस d, ये d आपने फाइंड आउट करना है, बट यू कैन नॉट कैंसिल आउट दिस d विथ एनी टर्म, बिकॉज ये क्या है, ये आपके पास अगर देख लेना तो इससे पूरा फार्मूला बन सकता है, लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके उस फार्मूले के ऊपर आपने इसको खोलना है, यू हैव टू ओपन अप बाय यूजिंग दैट फार्मूला। इसको जब आप ओपन अप करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल कम अप विद दिस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इज इट क्लियर इन टर्म्स ऑफ d? समझ आ रही है? So by Yes, using yes, that solution for quadratic equation we will solve it, and यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे, दो आंसर हमारे पास आएंगे। एक आंसर हमारे पास है 149.3 एंड एक है 149.9 इन 10⁹ मीटर। सो कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस d हमारे पास कितना होना चाहिए जिसपे ये पार्टिकल सेम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे फ्रॉम सन एज वेल एज फ्रॉम अर्थ, वो आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, 113 जो है ये आप खुद कर ले काइंडली, 114 देख लें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपने थोड़ा सा वो देखना है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है अर्थ, तो अर्थ का कोई रेडियस होगा, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली मून, ठीक है। सो जो मास ऑफ मून है, अगेन यू कैन लुक एट फ्रॉम टेबल, d/4 है कि d/2 है, जो इनिशियल मैंने आपको बताया था, ठीक है, फ्रॉम द अपेंडिक्स। ओके, ये डिस्टेंस अगर आप वो करना चाहते हैं, सो सन
और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ मून को आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर पॉइंट बी पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दिस पॉइंट बी, तो आपने क्या करना होगा, बेसिकली अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे आपने ये डिस्टेंस माइनस करना होगा, विच इज बेसिकली रेडियस ऑफ मून। और अगर पॉइंट ए पे आप निकालना चाहते हैं, सो अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ आपने ये डिस्टेंस ऐड करना होगा, विच इज रेडियस ऑफ मून। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो ये 2 पॉइंट सिर्फ इसमें है, आप काइंडली इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन ये सिंपल है। ओके, द ड्रैग कोफिशिएंट the drag coefficient CD of an automobile is determined from the expression। अच्छा, 2 तरह के फोर्सेस आपके पास एयरक्राफ्ट पे होते हैं when it moves, एक होता है लिफ्ट, एक होता है ड्रैग। लिफ्ट फोर्स की वजह से इट मूव्स अपवर्ड बेसिकली, ठीक है, और ड्रैग जो होता है, ड्रैग फोर्स बेसिकली द फोर्स जो एयर की वजह से एयरक्राफ्ट पे आ रहा होता है, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि गाड़ी तो आपके पास उड़ नहीं सकती, उस केस में आपके पास लिफ्ट इतना नहीं होता, लेकिन जो ड्रैग फोर्स आपके पास होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि गाड़ी के ऊपर जो ड्रैग कोफिशिएंट है CD ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, डी क्या चीज है, व्हाट इज डी, वेयर डी इज ड्रैग फोर्स, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय यूजिंग विंड टनल। रो क्या है, वो डेंसिटी है आपके पास, वी क्या है आपके पास, वो स्पीड ऑफ एयर है, एस आपके पास क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो अगर ये सारी चीजों का आपको पता लग गया है, इन सारी चीजों का, सो आपने करना क्या है, बेसिकली आप CD की जरा डायमेंशन फाइंड आउट करें। ठीक है, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यस फोर्स सर। इज इक्वल टू MA। ठीक है, MA मतलब kg, और A के लिए आपके पास एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स के लिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2 रेस्ट ऑफ पावर माइनस 2 मींस ML डिवाइड बाय T स्क्वायर हो जाएगा। और रिमेनिंग जितने भी आप उसकी जो डायमेंशंस है वो आप पुट करें, यहां से फाइंड आउट करें, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस वाज end of today's lecture. If you are having any question you can ask me। जी कोई क्वेश्चन है? नहीं है क्वेश्चन? No, सर ये sir. लास्ट बार में एक एक्स्ट्रा बुक पोस्ट की थी ग्रोथ क्लासरूम में, दोबारा रेफरेंस बुक आरसी हिबलर की थी, वो तो स्टैटिक्स की थी, तो क्या डायनामिक्स में भी आप पोस्ट कर सकते हैं आरसी हिबलर की अगर है तो? एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियरिंग डायनामिक बुक, और ये RC हिबलर 12th एडिशन, इसका जो है बेसिकली 12th चैप्टर ऑनवर्ड जो इसका है, मींस 1 से लेके 11 तक आई थिंक ये स्टैटिक्स पोर्शन है, और उसमें 12th ऑनवर्ड जो आपके पास चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू डायनामिक्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। थैंक यू ये सर, हिबलर, ठीक है ठीक है, ठीक। ओके। सर जी जी सर जी 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 सर जब रिलेटिव आती है, एब्सोल्यूट आती है 9.823 जी की वैल्यू, तो हम जी 9 सर जब 9.823 वैल्यू आती है हमारे पास एब्सोल्यूट जी की, तो हम फिर जी जी कैलकुलेशन में 9.81 क्यों यूज करते थे अभी तक? अच्छा, ये कौन सी वैल्यू आप कह रहे हैं, कौन सी 9.823 आती है? सर जी की जब अर्थ स्टैटिक हो, स्टैटिक हो, रोटेट ना कर ठीक रहा है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। तो अर्थ आपके पास यूजुअली रोटेट करता है या नहीं करता? हो। जी सर, अर्थ आपके पास स्टैटिक है या रोटेट कर रहा है? रोटेट करता है। अच्छा, तो आपके ख्याल में कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए? जी 9.823 अच्छा, ये क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं, अर्थ जब रोटेट, 9.806 सर, 806 रिलेटिव। ठीक है, हाँ, तो 9.806 को जब आप राउंड ऑफ करते हैं वो 9.81 ऑलमोस्ट हो जाती है ना, तो इस वजह से हम ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ तो एक्चुअली आपके पास रोटेट कर रहा होता है।
तो मीन्स आपके पास जो वैल्यू ऑफ जी आती है वो आपके पास रिलेटिव ही होगी, ठीक है। और अगर हम इमेजिन ये कर लेंगे कि हमारे पास अर्थ स्टैटिक कंडीशन में, फिर आपको जी एब्सोल्यूट यूज करनी होगी, तो जी एब्सोल्यूट मींस आपके पास कैलकुलेशन गलत हो सकती है फिर। ठीक है सर। ठीक है जी सर। ओके। अच्छा क्वेश्चन किसी ने कर ले काइंडली, अगर क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके Excuse me, sir.